Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class, we are going to discuss about casualty assessment methods and various terminology related with the casualty assessment. Okay. So in earlier classes, we already discussed about the various aspect of pharmacovigilance, particularly in adverse drug monitoring. Okay. So now we are discussing about the casualty assessment. So आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, in each and every lecture we at the end of lecture we have 5 MCQ. So solve this MCQ and give the answer in comment box. Okay. So just understand what is casualty assessment. First we must understand about the casualty. Casualty क्या है? Particularly if we are giving any drug, then there is a possibility of adverse drug reaction. So whenever there is an adverse drug reaction, we don't know that this particular adverse drug reaction is just because of only of the drug, or it is because of the simultaneously presence of one or more disease, or there is some other cause. Other cause means person is taking herbal supplement, person is taking other treatment, other system like homeopathic system, Unani system. Okay. Or there is an environmental factor. So we are not able to identify that a particular adverse drug reaction is just because of a drug. So in casualty assessment what we are doing, casualty assessment में हम क्या करते हैं, we are linking a adverse drug reaction with the drug. Suppose this is a adverse drug reaction and this is the drug. Okay, so we are linking adverse drug reaction with the drug by ruling out other factors like disease and some other causes. So this is particularly known as a casualty. Okay, so what are the basic objective of casualty assessment? So the first objective is provide relationship between drug and event. यहाँ पर हम क्या करते हैं, basically drug or adverse drug reaction. Event means ADR. Okay, this means ADR. So we are trying to make a relationship between the drug and ADR. Okay, so this is the first objective. Then signal identification, or we can say signal detection. Then signal detection. Okay, so what is signal detection? I already discussed the definition of signal in earlier lecture. So particularly signal is a first event, we can say first identification for adverse drug reaction in early stage. कभी भी कोई भी ड्रग अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रही है तो सिग्नल वो चीज़ है जिसको कि हम डायग्नोस्टिक लेवल पर और अदर डिटेक्शन मेथड के थ्रू हम उस ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता लगा सकें. मतलब अगर एक या मल्टीपल रिपोर्ट हो, वन और मोर मल्टीपल रिपोर्ट्स हों, तो उससे क्या होगा, सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन होगा. तो सिग्नल डिटेक्शन से क्या हो जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिटेक्ट हो जाएगा. ओके, then it provide better evaluation of harm and benefit of the drug. So if we are able to identify the adverse drug reaction and severity of the adverse drug reaction, then we are able to find out about the harm or benefit. We can say risk benefit ratio. Risk benefit ratio पता लग जाएगा ड्रग का कि ड्रग कितनी हार्मफुल है और कितनी यूजफुल है in particular clinical condition of the patient. Then it also show important role in evaluating ADR reports in early warning system for regulatory purposes. So regulatory agency जितनी भी होती हैं, regulatory authority किसी भी कंट्री की जो भी होती हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए होता है. मीन्स कभी भी किसी भी ड्रग के अंदर अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जितना जल्दी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी को पता लगेगा तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है फर्दर अपना स्टेप लेगी. तो कैजुअलिटी असेसमेंट के थ्रू ही जल्दी से जल्दी जो है, मतलब कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट होगा किसको रिपोर्ट करने का, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करने का. सो दिस इज द बेनिफिटेड फॉर रेगुलेटरी एजेंसी. ये रेगुलेटरी एजेंसी के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगर पता लग जाएगा कि एक एक्स ड्रग का जो है एडवर्स इवेंट है, तो वो आगे फर्दर मेडिकेशन लेटर्स इशू करके या फिर पैकेज इंसर्ट को अपडेट करके या फिर ड्रग विड्रॉल करके अपना इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करे. तो हम ये कह सकते हैं कि कैजुअलिटी असेसमेंट के थ्रू रेगुलेटरी एजेंसी को अपने कम्युनिकेशन का पर्पस मिल जाता है. ओके, देन व्हाट आर द बेसिस ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट. कैजुअलिटी असेसमेंट किस किस बेसिस पर किया जाता है? तो फर्स्ट वन इज टेम्पोरल रिलेशनशिप. टेम्पोरल रिलेशनशिप का मतलब क्या है?
I already discussed in last lecture, but again I am showing you something. तो टेम्पोरल रिलेशन में क्या है, सपोज किसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का क्लोजर रिलेशन है, क्लोजर रिलेशन विद द ड्रग, एडीआर जो है किसी ड्रग का जो है उसका क्लोजर रिलेशन है विद द ड्रग के साथ में, बट इट इज़ नॉट ट्रू इंडिकेशन। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल उसी ड्रग से वही एडीआर होगा ही होगा। टेम्पोरल रिलेशनशिप का मतलब यही हो गया यहाँ पर कि काफ़ी हद तक हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम 100% उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जितना ज़्यादा क्लोजर रिलेशनशिप होगा ड्रग का एडीआर कॉज करने का, उतना ही ज़्यादा मेडिसिन जो है एक्चुअल कॉज होगी एडीआर के लिए। प्रीवियस नॉलेज मीन्स बेसिकली इन अर्लियर, मतलब कि जो पुराना लिटरेचर है उसमें कहीं पर पहले से ही ये मेंशन किया हुआ है कि अ ड्रग एक्स इज कॉजिंग अ साइड इफेक्ट, ओके, ड्रग एक्स इज कॉजिंग अ एडीआर। तो जितना प्रीवियसली अगर मेंशन किया हुआ है लिटरेचर में, और अगर आगे भी क्लिनिकल कंडीशन में उतना ही उसी तरह के एडीआर्स मिलते हैं, इट मीन्स द ड्रग इज कॉजिंग द सेम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन डी चैलेंज एंड री चैलेंज। व्हाट इज डी चैलेंज? डी चैलेंज मीन्स कभी भी किसी ड्रग ने कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन किया है तो उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बाद में हमने ड्रग को विड्रॉ कर लिया, एंड आफ्टर विड्रॉइंग द ड्रग इफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज सबसाइड, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो गया है, वहां पर खत्म हो गया है, सबसाइड हो गया है, इन इट मीन्स ड्रग इज कॉजिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो दिस इज नॉन एज अ डी चैलेंज। एंड व्हाट अबाउट द री चैलेंज? व्हाट अबाउट द री चैलेंज? री चैलेंज का मतलब ये है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, किसी भी ड्रग की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, बट जब ड्रग को विड्रॉ किया गया तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबसाइड हो गया। नाउ अब अगर हम दोबारा से उसी ड्रग को दोबारा उस पेशेंट को देते हैं तो क्या वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन दोबारा उस पेशेंट में होता है? तो इसको बोलते हैं हम री चैलेंज। बट री चैलेंज हैविंग अ इथिकल कंसीडरेशन एज वेल एज इट इज अ डेंजरस। ये डेंजरस क्यों होगा? क्योंकि दोबारा से उस पेशेंट में एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन काफ़ी मुश्किल से मिलती है, ओके। देन कंफाउंडिंग फैक्टर भी जो है बेसिस ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट है। कंफाउंडिंग फैक्टर मीन्स पेशेंट इज टेकिंग सम अदर मेडिकेशन एज वेल, साइमल्टेनियसली पेशेंट इज टेकिंग सम other system medicine like homeopathic medicine, like Ayurvedic medicine, and he is taking some other exercises as well, or the patient having some diseases, पेशेंट को कुछ एक डिजीज के साथ दूसरी और डिजीज भी हो, जैसे इफ अ पर्सन इज हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज और पर्सन हैविंग अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लाइक पेशेंट हैविंग अ डायबिटीज, along with that patient also having hypertension. Okay, so in that case there is a possibility that the adverse drug reaction may be of other cause, not because of the drug. So these are some confounding factors. Then strength of association always give us a proven criteria, means जितना ज़्यादा किसी ड्रग का स्ट्रेंथ होगी कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करने की, सम ड्रग इज कॉजिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड रेगुलरली इट इज कॉजिंग अ सेम एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सो दिस इज शोइंग अ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन विद द एडीआर विद द ड्रग। एंड कंसिस्टेंसी, हाउ रेगुलरली द ड्रग इज कॉजिंग अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कितना रेगुलरली वो ड्रग जो है एडवर्स ड्रग सेम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रही है क्लिनिकल कंडीशन में। सो ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं बेसिस ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट के अंदर आते हैं। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी की ग्रेडिंग कैसे करेंगे, ओके। सो वी हैव सम 4 क्राइटेरिया, लाइक डेफिनेट मीन्स कैजुअलिटी इज प्रूवन, यहाँ पर की कैजुअलिटी क्या हो गई हो, प्रूवन हो गई, मीन्स द ड्रग इज 100% कॉजिंग द पर्टिकुलर एडवर्स इवेंट, ओके। सो दिस इज नॉन एज अ कैजुअलिटी is proven, okay. Then probable, what does it mean? Probable means the adverse event is not proven but likely to cause the event. ऐसा प्रूव नहीं हुआ है बट ऐसा हो सकता है कि उसी ड्रग ने एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज किया होगा। दिस टाइप ऑफ थिंग इज नॉन एज अ प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रोबेबल की श्रेणी में रखेंगे। देन पॉसिबल, व्हाट इज पॉसिबल, ओके, व्हाट इज possible means the drug plus other causes could responsible, drug along with some other causes means some supplementary medicines as well as some other diseases,
So or some environmental factor are the causes of ADR. So there is a possibility of ADR due to drug or some other causes. Or the next one is doubtful. Next one is doubtful. Doubtful means द ड्रग इज अनलाइकली टू बी द कॉज. जरूरी नहीं कि ड्रग नहीं किया हो, बहुत कम चांसेस है कि ड्रग की वजह से एडीआर हुआ हो, बट हम उसको रूल आउट भी नहीं कर सकते कि ड्रग की वजह से नहीं हुआ है. सो नाउ दीज आर द ग्रेडिंग ऑफ कैजुअलिटी. समटाइम एग्जामिनर आस्क्ड अबाउट दीज 4 टर्म्स. ओके, सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेडिंग ऑफ casualty. Clear? Now we are discussing about the methods of casualty assessment. Now किस तरह से इसको मेजर किया जाएगा, कैजुअलिटी को किस तरह से मेजर किया जाएगा. सो दे आर 3 मेथड्स. ओके, द फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट जजमेंट और ग्लोबल इंट्रोस्पेक्शन. द सेकंड वन इज एल्गोरिथम एंड थर्ड वन इज probabilistic methods. So first, expert judgment is divided into 2 types. The first one is Swedish method by Wilhelm, and second is WHO Uppsala casualty assessment method. And the second one is algorithm. They are various type of scales given by various scientists. So there are so many methods. इसमें काफ़ी सारे methods हैं. ओके, सो किसी एक मेथड पे कंसेंसस नहीं है साइंटिस्ट का. हर एक मेथड के अपने फायदे हैं और नुकसान है. सो व्हाट आर दोज स्केल? नारंजो स्केल, देन WHO प्रोबेबिलिटी स्केल, यूरोपियन ABO सिस्टम, Kramer's algorithm, then French imputation method and Jones scale, as well as Spanish quantitative imputation scale and Crach and Lasagna scale. Okay, so these are various algorithm scale. यहाँ पर आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी स्केल के बारे में, और वो पूछ सकता है कि ये स्केल किसके मेजरमेंट से रिलेटेड है, मीन्स कैजुअलिटी असेसमेंट के मेथड से रिलेटेड है. ओके, then there is a probabilistic method, then this particular method having Bayesian approaches. It is using what? A Bayesian approaches. So one by one हम इन सबको डिस्कस करेंगे. Now just understand expert judgment and global introspection. So in this method what we are doing, particularly expert judgment, the name suggests in this method there is a judgment done by the expert यहाँ पर क्या करेंगे? जजमेंट करेंगे. So how many expert we are taking? We can take single expert, हम एक single expert ले सकते हैं, और we can take a group of evaluator, or we can say expert evaluator. Okay, तो single expert और group of expert evaluator दोनों चीजें ली जा सकती हैं. तो यहाँ पर ADR का जो भी evaluation और assessment होगा वो किस पर बेस करेगा? Purely and purely it is based on the knowledge of expert and experience of the expert about the subject. So there are 2 methods given by the scientist. The first one is Swedish method by Wilhelm, and the second one is WHO Uppsala monitoring casualty assessment criteria. Now just look on Swedish method by Wilhelm. So what we are doing in Swedish method of Wilhelm, so in this method we evaluate the causal relationship by considering 7 different factors. तो अलग अलग फैक्टर के थ्रू यहाँ पर कैजुअलिटी रिलेशनशिप मेंटेन की जाएगी विद द ड्रग एंड विद द एडीआर. एडीआर की ड्रग के साथ में क्या कैजुअल रिलेशनशिप है इसको देखा जाएगा. तो यहाँ पर देखा जाएगा व्हाट इज टेम्पोरल सीक्वेंस, हाउ ड्रग इज associated with the ADR. In temporal sequence already discussed with you, and previous information on the drug. Previous information means the information which you are getting already in the clinical trials. Clinical trial में जो information हमें drug के बारे में मिली है उसको देखा जाएगा. Okay, then dose relationship, how is there any dose related with the ADR? तो यहाँ पर dose के साथ में ADR का relationship देखा जाएगा. Okay, and then रेस्पॉन्स पैटर्न ऑफ द ड्रग. तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किस तरह से ड्रग का रेस्पॉन्स आ रहा है. एंड देन रीचैलेंज मीन्स व्हेन एवर अ ड्रग इज स्टॉप्ड. ओके, यहाँ पर कभी भी एडवर्स ड्रग इवेंट हुआ और उसके बाद क्या कर दिया गया, ड्रग को क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया. ओके, एंड स्टॉप करने के बाद में वापस उस ड्रग को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया. तो उस ड्रग से क्या एडवर्स इवेंट आते हैं, हालांकि ये डेंजरस हो सकता है, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, इथिकल परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड अल्टरनेटिव इटियोलॉजिकल कैंडिडेट्स. सो अदर और कौन कौन से कॉजेज हैं, इटियोलॉजिकल कैंडिडेट कौन कौन से हैं जिनकी वजह से एडीआर आ सकता है. ओके, सो ये भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड. देन कंकमिटमेंट ड्रग्स,
ऐसा भी हो सकता है जब पेशेंट ड्रग्स ले रहा है तो यहाँ पर काफी सारी ड्रग्स ले रहा हो पेशेंट, ओके, मेडिसिन काफी सारी ले रहा हो, तो और साथ में जो मेडिसिन चल रही है उनकी वजह से एडवर्स इवेंट हो सकता है. सो दिस इज द अनदर कॉज. सो इवेंट आर क्लासिफाइड एज प्रोबेबल, पॉसिबल एंड नॉन असेसिबल एंड अनलाइकली. ओके, तो यहाँ पर इस मेथड की लिमिटेशन क्या होगी पर्टिकुलरली, यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरी के अंदर जो है कैजुअलिटी को प्लेस किया जाता है, तो उस वजह से क्या होगा, एडीआर का ओवरलेप हो सकता है. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एडीआर जो है रॉन्गली इवेल्युएट किया जा सकता है. तो ये इसकी लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या हो गई, जो काफी कम जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर कैजुअलिटी को प्लेस किया जा रहा है. सो बहुत कम पॉइंट रखे गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, एडीआर का ओवरलेप हो जाएगा, और एडीआर का अगर ओवरलेप होगा तो ये रॉन्गली इवेल्युएट होगा. ओके, नाउ जस्ट लुक ऑन उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर कैजुअलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया. सो दिस क्राइटेरिया सजेस्ट four criteria. First one is time relationship between the drug use and the adverse event. ड्रग लेने के कितनी देर बाद एडवर्स इवेंट आया, मतलब कितने टाइम बाद आया, इमीडिएटली आ गया है या आफ्टर लॉन्ग टर्म आया है. सो इमीडिएट अगर आया है तो वो कितनी देर तक रहा है, एंड लॉन्ग टर्म यूज में आया है तो वो कितनी देर तक रहा है. देन एब्सेंस ऑफ अदर कंपीटिंग कॉज. ओके, तो यहाँ पर और ये भी इवेल्युएट किया जाएगा कि एक ही ड्रग की वजह से आ रहा है या दूसरी कोई डिजीज है उसकी वजह से आ रहा है या दूसरी कोई मेडिसिन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तो कैजुअलिटी को यहाँ पर दूसरे जो फैक्टर है उनकी एब्सेंस को चेक किया जाएगा. देन रेस्पॉन्स टू ड्रग विड्रॉल एंड डोज रिडक्शन. देन इट मींस डी चैलेंज. ओके, डी चैलेंज में क्या किया जाता है, जनरली ड्रग की डोज को डिक्रीज कर दिया जाता है और ड्रग को विड्रॉ कर दिया जाता है. ओके, देन re-administration of the drug, and re-admission means re-challenge. So de-challenge and re-challenge already I discussed so many times with you guys, so I hope you people are able to understand what is re-challenge. Now the second one is algorithm. Okay, algorithm काफी सारी होती हैं. okay, तो बहुत सारे मेथड है एल्गोरिदम में, बट यहाँ पर एल्गोरिदम देखिए, एल्गोरिदम से नाम आते ही हमारे समझ में क्या आता है कि ये एक क्या होगा, एक पर्टिकुलरली मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा या स्टेप बाय स्टेप मेथड्स होगी. तो बेसिकली होता भी यही है. यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक फ्लो चार्ट. यहाँ पर कुछ हमको क्या दिए जाएंगे, एक स्पेसिफिक सवाल दिए जाएंगे और उनका हमें यस और नो में आंसर करना होगा. मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और उससे हम एट द एंड अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें सम क्वेश्चनायर होते हैं. इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चनायर होते हैं, उनके आंसर प्रोवाइड किए होते हैं और उन क्वेश्चनायर के अगर हम आंसर अगर लेने की कोशिश करेंगे तो उनके आंसर लेने से ही हमें क्या मिल जाएगा, कैजुअलिटी ऑफ पर्टिकुलर एडीआर के बारे में पता लग जाएगा. ओके, कि मतलब जो एडीआर है वो ड्रग से कितना लिंकअप है. एंड एल्गोरिदम से होता क्या है कि इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इट गिव्स स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ असेसमेंट इन सिस्टमेटिक अप्रोच. तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो कैसी होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी और स्टैंडर्डाइज होगी. इसमें जो है काफी कम होते हैं गलती होने के चांसेस. असेसमेंट ऑफ एडीआर बेस्ड ऑन पैरामीटर सच एज टाइम ऑफ onset ऑफ एडीआर, टेम्पोरल सीक्वेंस, प्रीवियस ड्रग और एडवर्स ड्रग रिएक्शन हिस्ट्री, डी चैलेंज एंड री चैलेंज. So again, these are the same method which we are describing in other criteria as well. So अभी काफी सारे कैजुअलिटी असेसमेंट के एल्गोरिदम के मेथड है, बट नॉट अ सिंगल मेथड. इनमें से कोई भी मेथड जो है गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक मेथड के अंदर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं. इस वजह से किसी भी मेथड को पूरा हम ये नहीं कह सकते कि यही मेथड फॉलो किया जाएगा. इसीलिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे मेथड दिए हैं जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज आता है उसको हम देख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नारंजो स्केल. सो यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं, नारंजो स्केल को देख रहे हैं. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस नारंजो एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्केल. ओके, नारंजो स्केल में क्या हुआ, यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके हमें आंसर क्या देने हैं. यस में आंसर है तो यस के लिए, नो के लिए आंसर एंड डू नॉट नो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर प्रीवियस कंक्लूसिव रिपोर्ट्स ऑन दिस रिएक्शन. तो इस पर अगर क्या हमारे पास में जो एडीआर आया उसमें कोई पहले से ही कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, यदि हाँ है तो उसके लिए हमें +1 मार्क्स देना है, और नहीं है तो 0 मार्क्स देना है, और नहीं जानते तो भी 0 मार्क्स देना है. देन जहाँ मार्क्स का मतलब जो है स्कोर से है. ओके,
देन डिड द एडवर्स इवेंट अकर आफ्टर द सस्पेक्टेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया गया कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है वो उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ही आया है, यदि हाँ तो उसका स्कोर क्या होगा, +2 का स्कोर होगा, और यदि नहीं है, नो में आंसर है, तो उसका स्कोर -1 होगा। नहीं जानते हैं तो यहाँ पर 0 स्कोर दिया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड द एडवर्स रिएक्शन इंप्रूव व्हेन द ड्रग वाज डिसकंटिन्यू और अ स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट वाज एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ दो चीजें हो गई, एक तो क्या हो गया कि जब जब ड्रग को रिमूव किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या इंप्रूव हुआ, और उसके साथ ही जो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दिया गया उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट, तो उससे क्या फायदा हुआ। यदि हाँ है उसका आंसर तो हमें +1 स्कोर देना है, और यदि नहीं है तो 0 स्कोर देना है, और नहीं जानते तो भी 0 स्कोर देना है। जनरली जहां पर हम कुछ भी नहीं जान रहे वहां पर सभी जगह हमें 0 स्कोर ही देना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिड द एडवर्स रिएक्शन रीअपीयर व्हेन द ड्रग वाज रीएडमिनिस्टर्ड। तो ये री चैलेंज की बात हो गई। ओके, सो री चैलेंज में क्या हो गया, अगर दोबारा से एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपीयर हो गया तो यहाँ पर हमें +2 का स्कोर देना है, और अगर नहीं हुआ है तो -1 का स्कोर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर कंकमिटेंट जो ड्रग्स चल रही हैं उनकी बात हो गई कि यहाँ पर जो और ड्रग्स चल रही है पेशेंट के साथ में, क्या उनकी वजह से एडीआर आ रहा है। यदि उसका आंसर हाँ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हम कह रहे हैं कि उसका आंसर हाँ है, तो यहाँ हम माइनस स्कोरिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी ड्रग है जो भी कॉज हो सकती है, इसीलिए इसको माइनस दे रहे हैं। अगर इसका आंसर ना होता तो हम क्या देते, प्लस का स्कोर देते। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस और प्लस में डिफरेंस आ गया। ओके, क्यों दे रहे हैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जिस ड्रग पर शक कर रहे थे उस ड्रग के अलावा हम किसी और ड्रग को पर भी हमारा शक का दायरा बढ़ गया है कि दूसरी ड्रग ने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज किया होगा, इसीलिए यहाँ पर यस आंसर होने पे माइनस माइनस स्कोरिंग हो रही है, और नो आंसर होने पे +2 की स्कोरिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिड द रिएक्शन रीअपीयर व्हेन अ प्लेसिबो वाज गिवन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने प्लेसिबो ड्रग दी, मतलब जिसमें कि कोई ड्रग थी ही नहीं, प्लेसिबो आप समझते ही क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जहां पर उसके अंदर कोई ड्रग नहीं होती, बट पेशेंट को पता नहीं होता कि इसके अंदर ड्रग है। यहाँ पर अगर हमारा आंसर यस है तो यहाँ माइनस स्कोरिंग दी जाएगी, और अगर नो है तो +1 की स्कोरिंग दी जाएगी। Then question number 7, was the blood detected in the blood or other fluids in concentration known to be toxic। तो यहाँ पर अगर किसी और बॉडी के किसी और फ्लूइड के अंदर अगर ब्लड डिटेक्ट किया गया है तो उसको क्या स्कोर दिया जाएगा। यस है हमारा आंसर तो +1 का स्कोर दिया जाएगा, नो है तो 0 का स्कोर, और डू नॉट नो में 0 का स्कोर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाज द रिएक्शन मोर सीवियर व्हेन द डोज वाज इंक्रीज्ड और लेस सीवियर व्हेन द डोज वाज डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने जब डोज को इंक्रीज किया तो क्या एडवर्स इवेंट बढ़ गया, सीवियर हो गया, और जब हमने डोज को डिक्रीज किया तो वो लेस सीवियर हो गया। यदि यस है उसका आंसर तो हमें +1 का स्कोर देना है, और नो है तो 0, और डू नॉट नो में भी 0 का स्कोर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिड द पेशेंट हैव अ सिमिलर रिएक्शन टू द सेम और सिमिलर ड्रग्स इन एनी प्रीवियस एक्सपोजर। अब यहाँ हम पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पहले भी क्या पेशेंट को सिमिलर काइंड ऑफ ड्रग या सेम ड्रग देने से ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। यदि हाँ है उसका आंसर तो +1 का स्कोर करेंगे, और ना है तो उसमें 0 का स्कोर। देन क्वेश्चन नंबर 10, वाज द एडवर्स इवेंट कंफर्म बाय एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो यहाँ अगर उसका आंसर हाँ है तो यहाँ +1 का स्कोर देंगे, और नो और डू नॉट नो में 0 का स्कोर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ अगर टोटल स्कोर अगर 0 आता है, ओके, तो यहाँ जो है वो इसको कैजुअलिटी को कैसे ग्रेड किया जाएगा, कैजुअलिटी इज ग्रेडेड एज ए डाउटफुल। और अगर 1 से 4 के बीच में अगर स्कोर आता है तो यहाँ कैजुअलिटी ग्रेडेड एज ए पॉसिबल। 5 से 8 के बीच में आता है तो प्रोबेबल स्कोर दिया जाएगा किसको, ग्रेडिंग को। और 9 और 9 से ज्यादा आता है, 9 एंड 9 से ज्यादा आता है तो उसको डेफिनेट स्कोर दिया जाएगा। मतलब कि कैजुअलिटी जो है यहाँ पर प्रूव हो गई, डेफिनेट का मतलब प्रूव हो गया, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ ये चीज। सो यहाँ इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, मेथड ओनली एक्सप्लेन द कैजुअलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल ड्रग, नॉट एक्सप्लेन द कैजुअलिटी अकर ड्यू टू द ड्रग इंटरेक्शन। तो याद रखिए यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैरेंजो स्केल में जो हमें कैजुअलिटी है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता नहीं चलती, केवल एक ही ड्रग के बारे में हमें
पता लगती है। और इस स्कोर पर भी आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 0 स्कोर है तो कैजुअलिटी को क्या ग्रेड होगा, 1 से 4 का स्कोर है तो कैजुअलिटी क्या ग्रेड होगा, 5 से 8 का स्कोर है तो कैजुअलिटी का क्या ग्रेड होगा, और 9 का स्कोर है तो कैजुअलिटी का क्या ग्रेड होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे। नाउ थर्ड मेथड इज प्रोबेबिलिस्टिक और बेशियन अप्रोचेस। ओके, तो प्रोबेबिलिस्टिक और बेशियन अप्रोचेस है क्या, बेसिकली उसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए जो कैजुअलिटी असेसमेंट किस पर बेस्ड है, प्रायर प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी से मतलब है कि जो पेशेंट की पहले की हिस्ट्री है और साथ में ड्रग की पेशेंट के साथ में पुरानी जो हिस्ट्री है वो देखी जाएगी, लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट देखे जाएंगे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पर करंटली जो पेशेंट को ड्रग दी गई है, जो करंट सिचुएशन में जो ट्रीटमेंट चला है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आए हैं उनको चेक किया जाएगा। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर प्रायर प्रोबेबिलिटी जो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कंबाइन दिस epidemiological background information with the evidence of individual case। तो posterior probability में हम दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुराना उसका एपिडेमियोलॉजिकल बैकग्राउंड भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल केस है उसमें जो एडीआर आया है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। दिस मेथड अलाउ द साइमल्टेनियस असेसमेंट ऑफ मल्टीपल कॉजेस। ओके, तो बेशियन अप्रोच का फायदा क्या है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो कोई भी एडीआर अगर हो रहा है तो उसके मल्टीपल कॉजेस का पता लगा सकते हैं। ओके, सो बेशियन अप्रोच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑन आइदर पेपर और कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम एक्सेल का यूज करते हैं, स्प्रेडशीट का यूज करते हैं थ्रू द कंप्यूटर, और उसके थ्रू हम इसको पता लगाते हैं। It calculate the and provide the instant numerical and graphical feedback as soon as new piece of evidence of the suspected ADR are evaluated। Okay, तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल डाटा भी मिलता है और ग्राफिकल फीडबैक भी मिलता है। तो दोनों ही से हमें बहुत ही पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि एडीआर किसकी वजह से होगा, सिंगल ड्रग की वजह से हुआ होगा या मल्टीपल ड्रग्स की वजह से हुआ होगा। सो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो जो नारंजो स्केल में हम केवल एक इंडिविजुअल ड्रग से पता लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बेसियन अप्रोचेस में क्या फायदा है, हम मल्टीपल कॉजेस का पता लगा सकते। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड बेसियन एडवर्स ड्रग रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में बार्डी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें कि कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बार्डी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग कॉजिंग एन एडवर्स इवेंट कंपेयर्ड विद एन अल्टरनेटिव कोर्स। तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, पर्टिकुलरली सपोज करिए ड्रग ए है, ओके, एंड ड्रग ए कॉज सपोज करिए इसने कॉन्स्टिपेशन किया है। अब यहाँ पर और भी ड्रग्स हैं हमारे पास में, पेशेंट ने ड्रग बी भी यूज की है, ड्रग सी भी यूज की है और ड्रग डी भी यूज करी है। ओके, तो अब यहाँ ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स को शक ये है, सपोज करिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उन्होंने जो अप्रोच लगाई उससे ड्रग ए ही कॉन्स्टिपेशन करती है। तो यहाँ इस फॉर्मूला में ये चेक किया जाएगा कि ड्रग ए की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ही ड्रग कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी, बी सी और डी जो है नहीं कॉज करेगी। तो यहाँ पर इसी को चेक किया जाता है थ्रू द फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर ऑड्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर 6 असेसमेंट सबसेट्स लिए जाते हैं। 1 डील विद द बैकग्राउंड एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल ट्रायल इंफॉर्मेशन। देखिए तो यहाँ पर 6 असेसमेंट सबसेट्स जो लिए गए हैं, तो 6 सबसेट में से एक जो हमारा जो है वो कैसा है, प्रायर इंफॉर्मेशन वाला है। ओके, और जो रेस्ट 5 जो हैं वो पोस्टीरियर इंफॉर्मेशन वाले हैं, और जिसको कि हम लाइक्लीहुड रेशियो बोलते हैं। प्रायर में क्या आ जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और जो रेस्ट ऑफ द 5 होंगे उनमें लाइक्लीहुड रेशियो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप देखिए क्या फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टर्म्स। ओके, तो क्या टर्म है, PRO मीन्स व्हाट, PRO मीन्स प्रायर ओड्स। प्रायर ओड्स क्या हो गए, प्रायर ओड्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू द एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल ट्रायल इंफॉर्मेशन। देन जो अलग अलग 5 लाइक्लीहुड रेशियो है, LR का मतलब क्या हो गया, लाइक्लीहुड रेशियो।
डील विद एनी इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डायग्नोस्टिक वैल्यू अंडर द प्रायर हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लाइक्लीहुड रेशियो कैसे पता लगाएंगे, प्रायर हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर HI इंट्रोड्यूस कर दिया। देन टाइमिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो इसीलिए हमने इसको TI इंट्रोड्यूस कर दिया। देन CH मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडवर्स इवेंट, एडवर्स इवेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। देन डी मीन्स डी चैलेंज, ड्रग डी चैलेंज किया गया, और RE मीन्स री चैलेंज। ओके, तो ये इन सबको हम अगर आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, POS आ जाएगा। सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड होल ऑफ दीज मेथड्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है नारंजो स्केल का, एज वेल एज आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है बेशियन अप्रोच का। ओके, एंड इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। Discussing the question number 1, what is the objective of casualty assessment? A, signal detection. B, provide better information of harm benefit of drug. C, provide relationship between drug and adverse drug event. D, all are correct. Question number 2, what is the basis of casualty assessment? A, re-challenge. B, D-challenge. C, temporal relationship. D, all are correct. Question number 3, definite grading suggest. A, casualty is proven. B, likely to cause the event. C, both are correct. D, none are correct. Question number 4, Naranjo scale if found 0, then it suggests casualty is proven. B, casualty is probable. C, casualty is possible. Question number 5, which of the following is method of casualty assessment? A, Naranjo scale. B, WHO probability scale. C, Jones scale. D, all are correct. So I already discussed answer of all of these questions in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box. सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड होल द लेक्चर। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।